अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू पाकिडियो.tv। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स में आइसोमरिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमरिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखो तो आइसोमरिज्म है क्या चीज़। एक्चुअली आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स दैट हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. Okay, means those compounds that have same molecular formula and have different structural formula are called isomerism, and this phenomena is called isomerism. For monosaccharides, we have a formula to calculate the number of isomers, that is 2 raised power n, where n is the number of asymmetric carbon. And what is the asymmetric carbon? A carbon atom, okay, a carbon atom that is attached to 4 different groups to satisfy its tetravalency by single bond is known as asymmetric carbon. Okay, which carbon will be known as the asymmetric carbon? There are some necessities that are required for carbon atom to be so called. The first necessity is that all the 4 bonds of carbon should be single. Okay, and there should be 4 different groups, 4 different atoms that should react with carbon, okay, forming single bonds. Means it must exist in the form of CX4. Okay, CX4 means where C is the carbon and X are the 4 different atoms that form single bond with the carbon atom. Okay. If we see glucose has 4 asymmetric carbon atoms. Okay, the first and the last are the symmetric carbon atoms, while carbon number 2, 3, 4 and 5, these 4 carbon atoms in glucose are the asymmetric carbon atoms. If we discuss fructose, in case of fructose, carbon number 1, carbon number 2 and last carbon number 6 are symmetric, and the carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5 are asymmetric carbon atoms. And if we want to find out the number of isomers, we know that the formula for number of isomers is 2 power n. Here n is the number of asymmetric carbon, so put the value of 4, put the value of n at the place of put the value of n to calculate the number of isomers for different monosaccharide. Like for glucose it is 4, so number of isomers will be 16, and for fructose its value is 3, so its number of isomers are 8. But in ring structure, carbonyl carbon is also changed into the asymmetric carbon. If we discuss straight structure of monosaccharides, carbonyl carbon is symmetric carbon, but when we discuss it in ring structure, so carbonyl carbon also changes into the asymmetric carbon, so the number of isomers become double in case of ring structure. Like for glucose, in straight chain the number of isomers were 16, but in ring structure these will be 32 because one asymmetric carbon is increased. Similar for fructose, number of isomers were 8 when it was straight chain structure, and in case of ring structure these are double, that are 16. Okay, so now we discuss stereoisomerism. What is stereoisomerism? In stereoisomerism, certain compounds are found, okay, means 2 compounds that have same structural formula, means they have same structure but different from each other in their configuration. Means they will have same structure and they will have different configuration of atoms in space. Such type of isomers are called stereoisomers, and such type of phenomena is known as stereoisomerism. Like
D and L monosaccharide. D and L sugars are the one of the best examples of stereoisomerism because they have same structure but they have different configuration at penultimate carbon. Okay, what is penultimate carbon and what are D and L sugars? Inshallah we will discuss later, inshallah in few minutes. Next is the enantiomer. Enantiomers are also the monosaccharides that are the mirror images of each other with respect to asymmetric carbon atoms in their molecule. Okay, and like D glucose, L glucose means enantiomers are those monosaccharides that are mirror images of each other with respect to penultimate carbon. And what is the penultimate carbon? Penultimate carbon is actually uh, uh, an asymmetric carbon atom in case of monosaccharides that is farthest from the carbonyl carbon and that's nearest to the terminal alcohol. Okay, and let me give example like as you can see here is a monosaccharide structure present in front of you. First is the first carbon is carbonyl carbon and last is terminal alcoholic carbon. Okay, and the carbon number 2, carbon number 3 and carbon number 4 all the asymmetric carbons. Okay, so carbon number 1, 2 and 3 are the asymmetric and the carbon atom that is farthest from the carbonyl carbon and nearest to the terminal alcohol is the carbon number 4. So carbon number 4 is the penultimate carbon. We take the concept of D and L sugar on the basis of uh, position of hydroxyl group on penultimate carbon. If OH group is located on the right side, then this sugar is called D sugar, and if this OH is located on the left side of the penultimate carbon, then this type of sugar is known as L sugar. As you can see in front of you, here is the simplest monosaccharide that shows D and L concept. Okay, here you can see that there is only one carbon, that's asymmetric carbon, and this is the simplest one that shows this type of isomerism. Okay, this is the simplest one. Okay, another 3 carbon containing monosaccharide is present, that's dihydroxyacetone, but dihydroxyacetone does not show isomerism. Why it doesn't show isomerism? Because it doesn't have any asymmetric carbon, उसमें कोई asymmetric carbon मौजूद नहीं होती. लेकिन अगर ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो इसमें एक ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होती है, जिस पे अगर OH जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद हो तो L शुगर और राइट साइड पे OH मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? D शुगर कहते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई ग्लिसरैल्डिहाइड इज़ कॉल्ड रेफरेंस शुगर. हम ग्लिसरैल्डिहाइड को रेफरेंस शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है, और सेकंडली ये केस में सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है. अगर कोई भी हमारे पास अगर देखें मोनोसैकेराइड हो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पेनल्टीमेट कार्बन पर डी ग्लिसरैल्डिहाइड से मिलती हो, उसे हम डी शुगर कहते हैं. मतलब जिसके पेनल्टीमेट कार्बन पर OH राइट साइड पे होगा, जैसा कि डी ग्लिसरैल्डिहाइड में, उसे डी शुगर कहेंगे, और जिसका लेफ़्ट साइड पे होगा उसे हम क्या कहेंगे? एल शुगर कहेंगे, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू एल ग्लिसरैल्डिहाइड. ठीक है, दैट्स वाई ग्लिसरैल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज रेफरेंस शुगर. ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है डी शुगर और एल शुगर की अगर बात करें, जो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स एल ग्लूकोज है, एल फ्रुक्टोज है, या एल राइबोज है, ये तो डिपेंड करेगा ना पोजीशन ऑफ OH पर. अगर लेफ्ट साइड पे है ऑन द पेनल्टीमेट कार्बन, देन वी विल से दैट दिस इज एल शुगर, और वो कोई भी हो सकती है एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में डी और एल का कंसेप्ट नहीं है, अदरवाइज तमाम तर जो मोनोसैकेराइड्स में उनमें हम डी और एल का कंसेप्ट देखते हैं. इसमें जो है यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज़ नॉट कॉल्ड द रेफरेंस शुगर बट glyceraldehyde is called the reference sugar despite both contain same number of
कार्बन एटम्स एंड बोथ आर द सिंपलेस्ट वंस। तो इसके लिए रीज़न यही है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन बिल्कुल नहीं होता। जब एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता इसका मतलब पेनल्टीमेट कार्बन भी नहीं है। जब पेनल्टीमेट कार्बन नहीं है तो इसमें हम डी और एल का कंसेप्ट नहीं ले सकते, ठीक है। इसी वजह से जो है चूँकि ये जो है सिंपलेस्ट तो है लेकिन इसमें एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, इसलिए हम इसे रेफरेंस के तौर पर नहीं ले सकते। लेकिन दूसरे को ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होती है जिसके रेफरेंस से हम डी और एल का कंसेप्ट लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हैज़ नो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। इसमें आइसोमेरिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? इसमें यह आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता? तो इसमें जो है हमें पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ आइसोमर्स आर 2n, और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगर बात करें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन की तादाद क्या होती है? 0। अब n की जगह पे अगर हम 0 पुट करें तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो डाईहाइड्रोक्सीटोन का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर ये शो नहीं करता। दैट्स वाई वी से दैट इट डज नॉट कंटेन एनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द एनोमर्स। एनोमर्स आर दोज आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द एनोमेरिक कार्बन, जो कि एनोमेरिक कार्बन पर जस्ट ऑन एनोमेरिक कार्बन अपनी कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करते हैं। दीज आर कॉल्ड द एनोमर्स। ओके, नो व्हाट इज़ द एनोमेरिक कार्बन? द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। वो जो एल्डिहाइड्स, आपको पता है, यू नो दैट एवरी मोनोसैकेराइड कंटेन्स इधर aldehydic or ketonic functional group, and both aldehydic as well as the ketonic functional groups are called the carbonyl functional group. तो जो carbonyl functional group वाली कार्बन है that's called the anomeric कार्बन। और आपको पता है कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स इट इज़ कार्बन नंबर 1 एंड इन केस ऑफ कीटोन्स इट इज़ कार्बन नंबर 2। ओके, द कार्बोनाइल कार्बन that's carbon number 1 in case of aldehydes and carbon number 2 in case of ketones is known as anomeric कार्बन, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे जो आइसोमर्स बनते हैं, दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स, ठीक है। सेकेंडली, एनोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनोमर्स जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। अच्छा, तो एनोमेरिक कार्बन या एनोमर्स की हमें इम्पोर्टेंस क्या है? इन आइसोमर्स के बिहाफ पे हम अल्फ़ा और बीटा शुगर्स का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं? बाय डिस्कसिंग द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को देख के हम अल्फ़ा और बीटा शुगर्स का कंसेप्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं? अगर अल्फ़ा की बात करें, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, तो हेयर कार्बन लेफ़्ट साइड राइट साइड पे अगर स्ट्रक्चर के देखें तो दिस इज़ द एनोमेरिक कार्बन। क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने शो किया गया, ठीक है। तो राइट साइड पे जो कार्बन नंबर 1 है, सो कार्बन नंबर 1 विल बी द एनोमेरिक कार्बन। तो इसमें अल्फ़ा शुगर क्या होगा और बीटा शुगर, मतलब अल्फ़ा ग्लूकोज कब होगा और बीटा ग्लूकोज कब होगा? अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है इट इज़ लोकेटेड, मीन्स इफ़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ लोकेटेड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग ऑन द एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर OH की पोजीशन अगर रिंग के निचली साइड पे है, देन इट विल बी नोन एज द अल्फ़ा शुगर, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर OH position of OH on anomeric carbon is above the plane of ring, then this type of sugar will be known as the beta sugar, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले मैंने शो किया, तो इसमें OH की पोजीशन बिलो द प्लेन ऑफ रिंग आप देख सकते हैं, और जो बीटा शुगर है इसमें आप OH की पोजीशन अबव द प्लेन ऑफ रिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एपिमर्स की अगर बात करें तो एपिमर्स आर आल्सो द आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन बट नॉट अराउंड द कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स विल बी कॉल्ड एज एनोमर्स। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप से हट के
किसी और कार्बन पर अगर पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की चेंज हो रही होती है तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स विल बी नोन एज द एपीमर्स। लाइक ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। ग्लूकोज और गलैक्टोज में क्या फ़र्क है? सिंपल, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर कार्बन नंबर 4 पर देखें तो कार्बन नंबर 4 पर अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, अगर ग्लूकोज का इसलिए अवेलेबल है तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहीं पे अगर हम सिंपली देखें तो कार्बन नंबर 4 पर अगर OH राइट साइड पे हो, ओके, देन दैट्स ग्लूकोज। और अगर OH कार्बन नंबर 4 पे हेक्सोज के केस में, एल्डो हेक्सोज के केस में लेफ्ट साइड पे है, देन दिस टाइप ऑफ शुगर विल बी नोन एज गलैक्टोज। ठीक है, कार्बन नंबर 4 पर जो है HO और OH की जो पोजीशन है उसको अगर इन्वर्ट करते हैं तो ये ग्लूकोज और गलैक्टोज भी एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। सो दैट्स वाई दीज आर नॉन एज epimers of each other। ठीक है, बोथ ग्लूकोज एंड गलैक्टोज आर epimers of each other on कार्बन नंबर 4। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इंशाल्लाह अभी वो भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और इंशाल्लाह वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।